Welcome back, students. In today's session, I am dealing with the topic Kingdom Animalia from the chapter Diversity in the Living Organism. Before today's topic, let's flash back to the previous session where we were dealing with question R. Now we will deal with answers of those questions, and the questions are: what is the reserve food of algae? That is starch. What is the venation in monocots? Parallel venation. To what division of Plantae does belong the Deda trees of Himalayan region? The answer is Gymnosperm. In which group of plants seeds are protected by fruits? Angiosperm. Name the group of vascular cryptogams. The answer is Pteridophyta. The sixth one is name the division which is known as amphibians of the plant kingdom. That is Bryophyta. What is the chemical characteristics of algae cell wall? The algae cell wall is made up of cellulose. To which division of cryptogams do algae belongs? Thallophyta. Why bryophytes and pteridophytes grow in moist and shady places? Because they require water for fertilization. Name the sex organs of gymnosperm and angiosperm. The sex organ of gymnosperm is cone and the sex organs of angiosperms are flowers. Which division plants have the simplest organism? Algae. The next question is, which type of roots are found in dicots? The taproot. Which division do ferns belong to? That is Pteridophyta. How are pteridophytes differ from the phanerogams? The plants belonging to Pteridophyta do not produce seeds, whereas those belonging to phanerogams produce seeds. In gymnosperms, which cells are absent in xylem and phloem tissue? In xylem, the vessels are absent. In phloem, the companion cells are absent. Now, dealing with today's topic, there are some key words. The first word is bilateral symmetry, which means body organization which one median plane can divide an organism into two halves, each being a mirror of image of the other. It means कि अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक मीडियन प्लेन में कट करते हैं तो वो दो इक्वल हाफ में हमें दिखाई देगा और दोनों जो हाफ है एक दूसरे के मिरर इमेज होने चाहिए. जैसे कि अगर हम इस एक रेक्टेंगल है, अगर हम इसे बीच से कट करें तो दोनों क्या होने चाहिए? एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए और एक दूसरे के मिरर इमेज होने चाहिए. तो इसे हम कहेंगे बाइलेटरल सिमेट्री. द नेक्स्ट वन इज सीलोम, विच मीन्स बॉडी कैविटी. डिप्लोब्लास्टिक. Now what is the meaning of diploblastic? Animals having a body made of two germ layers of cells. यानी जो एनिमल के बॉडी है वो टू लेयर्स जो है सेल के बने होने चाहिए. उनका बॉडी सेल के दो लेयर से बने होते हैं. द नेक्स्ट वन इज एक्सोस्केलेटन. कैल्केरियस, चिटिनस और हार्ड मटेरियल कवरिंग द बॉडी सरफेस एंड प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट. जब ऑर्गेनिज्म के बॉडी जो सरफेस है वो कैल्केरियस है, चिटिनियस जैसे हार्ड सब्सटेंसेस के बने होते हैं और ये जो हार्ड कवर है ये बॉडी को प्रोटेक्शन और सपोर्ट देते हैं. नाउ द नेक्स्ट वर्ड hermaphrodite, an individual who possesses both male and female reproductive organs. That type of animals are known as hermaphrodite. Means जिस organism के body में reproductive organs जो है male के भी होते हैं और female के भी होते हैं उन्हें हम hermaphrodite कहते हैं. The next one is parapodia. Paired fleshy appendages extending laterally from each segment. Here the appendages means legs. The parasitism, a type of heterotopic nutrition in which an organism is benefited and the another is harmed. इस टाइप के न्यूट्रिशन में एक ऑर्गेनिज्म पूरी तरह से दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है.
जिसके ऊपर एक ऑर्गेनिज्म डिपेंड होता है उसे हम होस्ट कहते हैं, और जो डिपेंड होता है उसे हम पैरासाइट कहते हैं। पैरासाइट जो है हमेशा बेनिफिट लेता है होस्ट से, और होस्ट को जो है हमेशा उस ऑर्गेनिज्म से हानि होती है। नेक्स्ट वन इज सीडोसिलोम। बॉडी कैविटी और एरिया बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट इज नोन एज सीडोसिलोम। बॉडी कैविटी या एरिया जो कि गट और बॉडी वॉल के सेंटर में होता है या मध्य में होता है, उसे हम सीडोसिलोम कहते हैं। गट यानी एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम माउथ टू एनस। द नेक्स्ट वन इज रेडियल सिमेट्री। द अरेंजमेंट ऑफ सिमिलर पार्ट अराउंड ए सेंट्रल बॉडी एक्सिस एज इन अ व्हील और column. That type of symmetry is known as radial symmetry. The next one is regeneration. It is a type of asexual reproduction, regrowth of a lost or injured tissue or part of an organism is known as regeneration. Regeneration में जो injured tissue है या फिर organism का कोई भाग जो है वो कट गया है तो उसका regrowth हो जाता है, तो उसे हम regeneration कहते हैं. The next one is triploblastic. Animals having a body made of 3 germs layer of cells. इस प्रकार में जो ऑर्गेनिजम्स के जो बॉडी होते हैं वो सेल के 3 लेयर्स से बने होते हैं. नेक्स्ट वन इज डोर्सोवेंट्रली. इट मींस फ्लैटेंड फ्रॉम बोथ द सरफेस. अपर सरफेस और लोअर सरफेस जो ऑर्गेनिजम्स के होते हैं वो दोनों साइड से चपटे होते हैं. द नेक्स्ट वन इज मोल्टिंग. मोल्टिंग मीन्स द शेडिंग ऑफ स्किन. यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स है वो अपने स्किन को जो है शेड करते हैं. नेक्स्ट वन इज कैल्केरियस, रिजेंबलिंग और कंटेनिंग कैल्शियम कार्बोनेट और लाइमस्टोन. Now the animal kingdom, the today's topic. Animals have wall-less eukaryotic cell. जो animals होते हैं वो eukaryotic cells के बने होते हैं और उनके सेल में cell wall नहीं होता है. Animals have heterotrophic nutrition. They depend upon other plants and animals for their food. Animals generally possess a definite shape, size and symmetry. Exception occur in lower forms. Most animals are mobile. ज़्यादातर जो animals होते हैं वो move करते हैं. Movement occur in animals with the help of a muscular system. Animals have organization of cellular tissue, organs and organ system level. This diagram shows the animals. Now the characters responsible for the classification of kingdom Animalia. किन characters के आधार पर हम kingdom को जो है जो animal kingdom है उसे हम कैसे divide करते हैं. The animal kingdom is classified into several phyla mainly on the basis of certain criteria such as structural organization of animal body. ऑर्गेनिजम्स में जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके 3 डिस्टिंक्ट लेवल होते हैं. वो लेवल है सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल. तो इस आधार पर जो है ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाता है. द सेकेंड वन इज बॉडी सिमेट्री. सिमेट्री रेफर्स टू द सिमिलैरिटी इन द अरेंजमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द बॉडी. द नेक्स्ट वन इज प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड. नोटोकॉर्ड इज ए टाइप ऑफ स्केलेटल रॉड. कि ऑर्गेनिज्म में नोटोकॉर्ड होते हैं या नहीं होते हैं, इस आधार पर भी किंगडम एनिमेलिया को क्लासिफाई किया जाता है. द नेक्स्ट वन इज प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी और सीलोम. ऑर्गेनिज्म के बॉडी में कैविटी है या नहीं है. द नेक्स्ट वन इज जर्म लेयर्स. द नेक्स्ट वन मोड ऑफ ऑरिजिन ऑफ माउथ एंड सो ऑन. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉपर्टीज वी कैन क्लासिफाई द किंगडम एनिमेलिया into different phyla. Now what are the phyla? The phyla are, the first one is Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nematoda, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Protochordata, and the last one is Vertebrata. The first phylum is Porifera. The word porifera means an organism with holes. Porifera का अर्थ होता है कि organism के body में holes होते हैं. These are non-motile animals attached to some solid supports.
They have holes or pores all over the body. इस फाइलम के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, मीन्स वो गति नहीं करते हैं, वो किसी सॉलिड सपोर्ट से अटैच रहते हैं. These lead to a canal system that helps in circulating water throughout the body to bring in food and oxygen. उनके बॉडी में जो पोर्स होते हैं, इस कारण उनमें एक कैनाल सिस्टम होता है या कैनाल सिस्टम उनके बॉडी में फूड और ऑक्सीजन को सर्कुलेट करने में सहायता करता है. These organisms are covered with a hard outside layer or skeleton. Skeleton is made of minute calcareous or silicous. जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें भारी जो कवर होता है वो कैल्केरियस या सिलिकस का बना हुआ होता है. The next property is the body design involve very minimal differentiation and division into tissues. There are no organs and organ systems, thus they have cellular level of organization. इन ऑर्गेनिज्म के बॉडी में ज़्यादा जो है डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है. इनके शरीर में ऑर्गन सिस्टम नहीं होते हैं. इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर लेवल का होता है. माउथ, digestive cavity and anus are absent. Reproduction is both asexual by budding and sexual through fertilization. इनमें जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन के द्वारा इनमें रिप्रोडक्शन होता है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बर्डिंग प्रोसेस के द्वारा ये रिप्रोड्यूस करते हैं. इनमें पावर ऑफ रीजनरेशन भी होता है. दे आर कॉमनली कॉल्ड स्पॉन्जेस एंड मेनली फाउंड इन मराइन हैबिटेट. इस फाइलम के ऑर्गेनिज्म को स्पॉन्जेस कहा जाता है और ये सभी जो है मराइन हैबिटेट में पाए जाते हैं. एग्जाम्पल है साइकॉन, स्पॉन्जिला एक्सेट्रा. दिस डायग्राम शोज द ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू फाइलम पोरीफेरा. The next phylum is Coelenterata. They are aquatic, mostly marine, but few like Hydra found in fresh water. इस फाइलम के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक्वेटिक होते हैं, अधिकतर जो है वो मराइन होते हैं यानी समुद्र के जल में पाए जाते हैं. कुछ जो है फ्रेश वाटर में होते हैं जैसे कि हाइड्रा. Some of these species live in colonies and while other live solitary. इनमें से कुछ स्पीशीज जो है वो कॉलोनी बनाकर रहते हैं जैसे कि कोरल्स, और कुछ जो है वो अकेले जीवन व्यतीत करते हैं जैसे कि हाइड्रा. दे आर मल्टी सेलुलर यानी वो बहुकोश के होते हैं. डिप्लोब्लास्टिक यानी उनके शरीर में कोशिकाओं के 2 लेयर होते हैं. विथ टिश्यूज ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. Body shows radial symmetry. The body encloses single cavity, has a single aperture, the mouth. The mouth serves both for taking food and for throwing out fecus. The mouth often bears tentacles. इनके बॉडी में जो टेंटिकल्स होते हैं जो माउथ की ओर होते हैं, ये जो ऑर्गेनिज्म है माउथ का उपयोग फूड को इनटेक करने में और फीकस को थ्रो करने में यूज करते हैं. रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर एब्सेंट. रिप्रोडक्शन इज यूजुअली asexual by budding. बर्डिंग प्रोसेस के द्वारा इनमें रिप्रोडक्शन होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो फर्टिलाइजेशन के द्वारा होता है. दैट फर्टिलाइजेशन में बी इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. नाउ व्हाट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन? Internal fertilization means when the fusion of male and female gamete take place inside the body of the organism. Now what is external fertilization? External fertilization means when the fertilization takes place outside the body of the organism. That is known as external fertilization. So in this organism the sexual reproduction can be taken place. The next one is the soft body may be supported by horny or calcareous skeleton.
हार्ड स्केलेटन अकर्स इन कोरल्स, जो इनके सॉफ्ट बॉडी के चारों तरफ जो है हार्ड स्केलेटन होता है, और जैसे कि कोरल्स में दे आर डिप्लोब्लास्टिक लाइक स्पॉन्जेस, जैसे स्पॉन्जेस में सेल्स के 2 लेयर होते हैं, इसी प्रकार इन ऑर्गेनिजम्स के शरीर में भी सेल्स के 2 लेयर होते हैं, इसीलिए इन्हें डिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल्स हाइड्रा, सी एनिमो, कोरल्स. This picture shows the organisms belong to Coelenterata. The next phylum is Platyhelminthes. The phylum Platyhelminthes is most primitive. It includes bilaterally symmetrical flatworms. They are triploblastic. Their body is made up of 3 layers of cell. The body is flattened dorsi-ventrally. इनका बॉडी जो है ऊपर और नीचे दोनों सरफेस जो है चपटे होते हैं. बॉडी इज थिन, सॉफ्ट, लीफ लाइक और रिबन लाइक. इनका बॉडी जो है वो सॉफ्ट होता है, पत्तियों के आकार का होता है, या फिर रिबन की तरह ये दिखाई देते हैं. सक्कर्स एंड हुक्स आर यूजुअली प्रेजेंट इन देम. सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड स्केलेटन आर एब्सेंट. These animals are hermaphrodite. इनमें जो है एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करने के लिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं. फ्यू एनिमल्स आर फ्री लिविंग both marine and fresh water and few are terrestrial. Some are parasitic animals. कुछ एनिमल्स जो है फ्री लिविंग होते हैं, अकेले रहते हैं, जैसे कि प्लेनेरिया. कुछ जो होते हैं वो मराइन या फ्रेश वाटर में रहते हैं, और कुछ जो है वो टेरेस्ट्रियल यानी धरती पर पाए जाते हैं, और कुछ जो है पैरासिटिक एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स के बॉडी पर पाए जाते हैं, जैसे कि लीवर फ्लूक्स. एग्जाम्पल है प्लेनेरिया, लीवर फ्लूक, टेपवर्म. This diagram shows about the animals. The next phylum is Nematoda. The body of an organism is bilaterally symmetrical and triploblastic. इनमें जो है इस फाइलम के ऑर्गेनिज्म बाइलेटरी सिमेट्रिकल होते हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं. बॉडी इज वर्म लाइक, सिलिंड्रिकल और फ्लैटेंड. इन ऑर्गेनिज्म के बॉडी जो है वर्म की तरह होते हैं, स्लेंडर होते हैं. टैपिंग एट 2 एंड्स मीन्स कि उनका जो है ऊपरी भाग और नीचे जो अंत का जो भाग होता है वो चपटा होता है. सिलिंड्रिकल शेप में होते हैं या फिर ये चपटे होते हैं. बॉडी इज कवर्ड विद ए टफ रेजिस्टेंट क्यूटिकल बट सीलिया इज एब्सेंट. इनका शरीर जो है टफ और रेजिस्टेंट क्यूटिकल से कवर होता है और इनमें सीलिया जो है वो नहीं होता है. देयर आर टिश्यूज बट नो रियल ऑर्गन्स, ऑल्दो अ शॉर्ट ऑफ बॉडी कैविटी और एसिडोसिलोम इज प्रेजेंट. इनमें जो है टिश्यूज होते हैं लेकिन कोई रियल ऑर्गन इनमें पाया नहीं जाता है. देयर इज अ स्ट्रेट वन वे एलिमेंट्री कैनाल विद माउथ एज वेल एज एनस. सच अ डाइजेस्टिव ट्रैक इज सेड टू बी कंप्लीट. इनमें स्ट्रेट एलिमेंट्री कैनाल होता है जो कि माउथ और एनस में खत्म होता है. इस तरह के डाइजेस्टिव ट्रैक को कंप्लीट ट्रैक कहा जाता है. सेक्सेस आर जनरली सेपरेट, मीन्स जो मेल ऑर्गेनिज्म है वो अलग होते हैं और जो फीमेल ऑर्गेनिज्म है वो अलग होते हैं. मोस्ट फॉर्म्स आर पैरासिटिक वर्म्स कॉजिंग डिजीजेस बट सम आर फ्री लिविंग इन सॉइल और वाटर. जो ज़्यादातर इस फाइलम के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो पैरासिटिक वर्म्स होते हैं जिनसे कि डिजीज उत्पन्न होता है, और कुछ जो है वो फ्री लिविंग होते हैं और वे सॉइल और जल में पाए जाते हैं. एग्जाम्पल्स हैं पिनवर्म, हुकवर्म, फिलेरियल वर्म एक्सेट्रा. दीज ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू द फाइलम Nematoda. The next phylum is Annelida. These animals are found in a variety of habitats.
फ्रेश वाटर, मराइन वाटर एज वेल एज लैंड। ये सभी ऑर्गेनिजम्स जो है या एनिमल्स जो है वो सभी प्रकार के हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर, मराइन वाटर और ज़मीन पर भी। दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सॉफ्ट, elongated, vermiform and cylindrical. The body cavity is a true coelom. इनके शरीर में body cavity होता है. The alimentary canal is complete, straight and extends through the entire body from mouth to anus. इनके शरीर में alimentary canal जो है वो complete होता है और जो कि mouth से शुरू होकर anus तक extend होता है. Locomotory organs are chitinous और पैरापोडिया इज प्रेजेंट। इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स होता है, जैसे कि अर्थवॉर्म में चिटेनियस सीटे होता है, नीरीज में पैरापोडिया होता है, परंतु कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे लीच में कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज्ड। इनमें जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज होता है। क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स द ब्लड फ्लोज इन अ वेसल्स। The reproduction occurs by sexual means. The sexes may be separate, unisexual और united. इनमें जो है sexual reproduction होता है और जो organisms होते हैं वो unisexual भी होते हैं या फिर united यानी hermaphrodite होते हैं. Examples हैं नीरीज, earthworm, leech, etc. These are the organisms. The next one is Arthropoda. Phylum Arthropoda is the largest phylum. Animal kingdom में जो Arthropoda phylum है ये सबसे बड़ा phylum होता है. They occur on land, in the soil, in fresh water, in sea water and as parasites on and in the bodies of animals as well as the plants. ये organism जो है सभी प्रकार के habitats में पाए जाते हैं, यहाँ तक कि ये जीवों के शरीर में या पेड़ पौधों में भी पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं. दे आर ट्रिप्लोप्लास्टिक, बाइलेटरी सिमेट्रिकल एंड मेटामेट्रिकली सेगमेंटेड एनिमल्स. बॉडी डिवाइडेड इनटू अ हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन. इनका जो बॉडी होता है वो सेगमेंटेड होता है. बॉडी को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, वो है हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन. सम और ऑल द बॉडी सेगमेंट्स बेयर जॉइंटेड अपेंडेजेस. सभी बॉडी के सेगमेंट में जो है इनके जॉइंट लेग्स होते हैं. जॉइंट लेग्स जो है ऑर्थोपोडा फाइलम में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म का एक महत्वपूर्ण गुण होता है. Exoskeleton is made up of thick chitinous cuticle. The hard cuticle restricts growth and is periodically changed during growth. The process is called molting. The alimentary canal is complete. Mouth is provided with movable appendages. Anus lies at the opposite end of the body. इनमें जो है alimentary canal जो है वो complete होता है. There is an open circulatory system and so the blood does not flow in well-defined blood vessels. The coelomic cavity is ब्लड फील्ड. इनमें जो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है. इनके शरीर में जो ब्लड है वो वेल डिफाइंड वेसल्स के अंदर फ्लो नहीं करते हैं. इनके शरीर के अंदर जो सिलोमिक कैविटी होती है उनमें जो है ब्लड भरा हुआ होता है. रेस्पिरेशन थ्रू जनरल बॉडी सरफेस बाय गिल्स, ट्रैके और बाय बुक लंग्स. जो रेस्पिरेशन के लिए इनमें कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्रॉन वो गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं. इंसेक्ट जो है वो ट्रैकिया जो एक ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर होता है उसके द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं और जो स्कॉर्पियन होते हैं वो बुक लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं. सेक्सेस आर सेपरेट. एग्जाम्पल prawns, butterflies, houseflies, spiders, etc. These organisms belong to the phylum Arthropoda. Now, the next phylum is Mollusca.
Some are terrestrial, some are aquatic, fresh water and mostly marine. It means कि कुछ organisms जो होते हैं वो terrestrial होते हैं, कुछ aquatic होते हैं. Aquatic में भी कुछ जो है वो fresh water में पाए जाते हैं, परंतु जो अधिकतर organisms होते हैं वो sea water में पाए जाते हैं. The animal body is little segmented, bilaterally symmetrical and coelomate. They have open circulatory system. इनमें भी open circulatory system होता है. जो blood है वो vessels के अंदर flow नहीं करते हैं. Alimentary canal is complete. They have kidney-like organs for excretion. इनके शरीर में किडनी के समान organs होते हैं जो excretion के process को करते हैं. There is a food that is used for moving around. Octopus, Chintan, Pila, etc. are the examples. These organisms belong to the kingdom Mollusca. The next phylum is Echinodermata. Simple animals may be star-like, spherical or elongated. इस phylum में पाए जाने वाले organism सरल ऑर्गेनिजम्स होते हैं. इनका आकार स्फेरिकल या इलोंगेटेड होता है और कुछ जो है स्टार शेप के होते हैं. बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट एंड अनसेगमेंटेड होते हैं. They are exclusively free living marine animals. ये free living organisms होते हैं और समुद्र में पाए जाते हैं. These are spiny skinned organism. इनका जो शरीर है वो spines के द्वारा कवर होता है. Body surface is covered with spiny hard calcareous spines. Digestive system is usually complete. They also have a peculiar water-driven tube system and they use for moving around. इनके शरीर में एक प्रकार का water-driven tube system होता है जो उन्हें move करने में सहायता करता है. Excretory organs absent होते हैं. Sexes are separate. Reproduction is sexual and in some asexual by regeneration. इनमें जो है reproduction वो sexual और असेक्सुअल दोनों प्रकार से होता है और असेक्सुअल में रीजनरेशन के द्वारा होता है. एग्जाम्पल्स है फेदर स्टार, सी कुकुम्बर, सी अर्चिन, स्टारफिश. These animals belong to the phylum Echinodermata. On the basis of today's session, now question are. First question is, which type of nutrition is found in animals? Second one, give an example of a freshwater cnidarian. The next one, what are the organs of locomotion in insects? Next one, in which animal phylum does tissue level of organization occur? The fifth one, which types of animals occur in Porifera? The sixth one, which mollusk does produce pearls? Next one, what is the name of the phylum to which roundworm belong? Eighth one, the tube feet occur in which type of animals? Name the largest phylum of kingdom Animalia. Name the annelid which suck blood from cattle and human beings. The 11th one, kidney-like organs for excretion is characteristics of which phylum of kingdom Animalia. The 12th one, which triploblastic group of animals lack a coelom? 13th one, canal system is characteristics of which phylum of kingdom Animalia? 14th, name the phylum in which organism body is segmented into three regions: head, thorax and abdomen. And the last one, name one organism which is hermaphrodite. अगले दो फाइलम प्रोटोकॉर्डेटा और फाइलम वर्टिब्रेटा हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे. होप यू अंडरस्टूड टुडेज सेशन. स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू.